has been a source of inspiration for each one of us at NPTI, and I know everybody would confess, since last September she has been on a roll. And a big round of applause for Madam for speeding us into this journey. Honored to have you this morning, and a big round of applause for Sir in this series of program Job Role 1, 2, 3, 4 and 5. So in the Job Role 1 we have already trained around 2,600 trainees, 3,000 trainees. So it is indeed momentous because we started this program on 17th December 2021, and since then NPTI through its 11 training institutes has trained 2,600, which is phenomenal. So big round of applause for my team as well. So thank you so much PFC and Sir for being part of this gathering. I would also like to welcome the Deputy Director from Ministry of Power, Mr. Viren Chaudhary, sir. Sir, you are very, it's a great welcome for all of us at here, because generally Ministry of Power people are quite busy, and you found out time at this occasion. I would also like to welcome Shri Chandrasekhar Iyer, the lead faculty for the program. Thank you so much, sir. Sir has been associated with NPTI earlier also, in his earlier engagements with other consulting companies. Sir is the faculty for the program. I would also extend a warm welcome to Dr. N.V. Kumar, Dr. N.K. Srivastava, Mr. N.R. Haldar, directors from NPTI, and my team, Mr. Rajesh Shukla and Mr. Rahul Pandey and Dr. Mahel, who have worked hard so much for conducting this program. A very warm welcome to all the participants from Dakshin Haryana Bijli Vitran Nigam Limited and Uttar Haryana Bijli Vitran Nigam Limited. I hope you have a great time and great learning. Thank you so much. सर, डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर जो है वो केवल एक ऐसा सेक्टर है इलेक्ट्रिसिटी वैल्यू चेन में जिसमें कि हम कह सकते हैं कि हमें थोड़ी कमी है. अगर हम भारत का जो वी आर डूइंग वेरी गुड इन इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर, वी आर नंबर 3rd in the world as far as generation capacity is concerned. We can say very proudly that our generation sector and transmission sector is at par with any developed nation. Only where we are lacking is distribution sector, and this is not that we are not having trained people. This is not that we have not working towards improving our distribution sector. The distribution sector is also picking up, because this is a major sector where the money flows back to the system. So if your distribution is unhealthy, it is going to impact our generation, and also it is going to impact our transmission. So it is so important that our distribution should be financially viable. And because we have never worked like that, जब हमारा इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर 1948 एक्ट के बाद हमने काम करना शुरू किया आफ्टर इंडिपेंडेंस, हमारा केवल एक ही मकसद था कि जितने से ज़्यादा लोगों को हम बिजली पहुंचा सके, यही हमारा मकसद था. तो सबसे पहले तो जनरेशन पर ध्यान दिया गया. ज़्यादा से ज़्यादा जो गवर्नमेंट की प्लान फंड थे वो जनरेशन की तरफ गए, जनरेशन के साथ साथ ट्रांसमिशन की तरफ गए, और डिस्ट्रीब्यूशन बस ये था कि हमें करना है, क्योंकि एक सोशल इम्पैक्ट की तरह इस सेक्टर को लिया, कभी प्रॉफिट मेकिंग की तरह इस सेक्टर को नहीं लिया. तो ये इस तरीके से डेवलपमेंट हुआ. लेकिन आज वो समय आ गया है जब भारत सरकार ने, स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने, बहुत ही एम्बिशियस स्कीम लेके आए हैं RDSS. और जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज हमारे जीवन में टेक्नोलॉजी कितना मेजर इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रही है. हम सब इसको विटनेस कर रहे हैं. ये एक टेक्नोलॉजिकल एरा है जिसमें हम लोग आज जी रहे हैं. तो इस टेक्नोलॉजिकल एरा में पहली बार एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है जब हम पूरी दुनिया में जो टेक्नोलॉजी के द्वारा काम हो रहा है उसी पैरेलल समय में हम काम कर सकते हैं. नहीं तो अक्सर ऐसे देखा जाता था कि जो डिस्कार्टेड टेक्नोलॉजी है विदेशों की, 10 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है, वो भारत लेता था. लेकिन इस बार हम उस वक्त काम कर रहे हैं जब वो लोग भी इस पर काम कर रहे हैं, और सेम समय में हम लोग भी इस पर टेक्नोलॉजी में, जो कि स्मार्ट मीटर का मेन एम्फेसिस है RDSS में, उसमें हम काम कर रहे हैं. और पहली बार मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने किसी स्कीम में ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग को एक बहुत महत्वपूर्ण दर्जा दिया है. एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू द मिनिस्ट्री ऑफ पावर कि उन्होंने NPTI को एक नोडल एजेंसी की तरह RDSS ट्रेनिंग प्रोग्राम और कैपेसिटी बिल्डिंग में लेके आए हैं. तो बड़े कंसल्टेशन के साथ बहुत सारे विचार होने के बाद 5 जॉब रोल जो है वो आइडेंटिफाई हुए हैं,
और उसमें पहला जो जॉब रोल था 1, वो NPTI ने पूरे भारत में सर करीबन 3,500 इंजीनियर्स को हमने ट्रेन किया है। और इस जॉब रोल 1 के द्वारा हमें बड़े करीब से डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर को जानने का मौका भी मिला है। और साथ ही साथ बिजली महोत्सव मनाने के कारण हरियाणा के उत्तर और दक्षिण ये सब लोग हमारे ऐसे परिचित हो गए हैं, और आज सबका स्वागत करते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है। और ये जो जॉब रोल 2 जो हम शुरू करने जा रहे हैं सर, पहला जो रहता है जॉब रोल 1 भी हमने यहीं से शुरू किया, फिर भारत के बाकी जगह में गया। इसी तरह आज जॉब रोल 2 की शुरुआत हम हरियाणा से कर रहे हैं। और फिर ये जॉब रोल 2 का ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग का जो प्रोग्राम है 3 दिन का है, ये भी ऑन साइट का ही है। फिर हम इंडिया के डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस के साथ जाकर के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को करेंगे। Respected faculty members of NPTI, my colleagues and the senior executives from utility, it is my profound privilege to give introductory remark in this auditorium. RDSS scheme, by now you have all know, this is a very prestigious and ambitious program of Government of India to leverage and to improve the system of discounts. US 8 से आए हुए हमारे गेस्ट स्पीकर डॉक्टर अय्यर जी, और सबसे महत्वपूर्ण जो उपस्थिति आप लोगों की है हरियाणा की तरफ से, तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर उपस्थित होने के लिए। और इन्होंने शुक्लानी जी ने जो मेरे लिए तारीफ की है, हालांकि मैं इतनी प्रशंसा का पात्र नहीं हूँ, आई एम ओनली वन ऑफ यू। मैं भी एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, शुरुआत वहीं से हुई थी। मैंने रास्ते में कई पड़ाव देखे और आज यहाँ आपके सामने खड़ा हुआ हूँ। लाल किले से जो प्राचीर से भाषण दे रहे थे, तो उसमें आपने सुना होगा कि अगले 25 सालों में आज़ादी के अमृत महोत्सव काल में हमें देश को विकसित देश बनाना है, डेवलप्ड कंट्री बनाना है। अब 75 साल हमारी आज़ादी के हो चुके हैं, आगे 100 सालों में देश को जिस मुकाम पर ले जाना है, विकसित देश बनाना है, और इसके लिए हमको हर सेक्टर में मेहनत करने की ज़रूरत है, दिन रात मेहनत करने की ज़रूरत है। जब हम सेक्टर्स की बात करते हैं तो आप देखिए हमारे देश ने कई सारे सेक्टर्स में रिफॉर्म्स किए हैं, और उन रिफॉर्म्स की बदौलत आज हमें दुनिया में